जो सैनिटरी पैड्स में ब्लीच होती है। तो सर इस वजह से हमने जो एक प्रोडक्ट बनाया जो आपके सामने मैंने रखा है, इट इज नारी केयर सैनिटरी पैड्स, नॉन क्लोरीनेटेड, नॉन ब्लीच एंड 90% biodegradable sanitary pads. It will take only 6 months to degrade 90% and the rest 10% is recyclable. So this is the visual representation as a sanitary pads. Okay, so Anand Solution have here one of the most pocket-friendly alternative of life-threatening sanitary napkins. Narikal is type of sanitary napkin which is 90% biodegradable, as I have told you earlier that. The most affordable type of biodegradable sanitary pads which is available in these days in market. This is my product. We have. So if we talk about the product, sir, if you can open it up in box. सर जो सबसे बड़ा इशू है जो लेडीज को आता है वो है इसको लेके जाना। अगर उनका कोई वर्किंग लेडी है या जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको सर सबसे ज्यादा इशू आता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन में। तो उनको कैरी करना सबसे ज्यादा टफ होता है। तो वी हैव मेड दिस पैकेजिंग, तो इसके साथ वो कैरी भी कर सकते हैं सैनिटरी पैड्स को। सर ऐसे ही जो पैकेजिंग है हम एम्प्टी पैड्स अवेलेबल कराते हैं बॉक्स के अंदर, जो कि यूज करके लेडी थ्रो करने में भी उसी में डाल के थ्रो कर सकती है। वो भी एक बड़ा इशू है। सर ये जो पैकेजिंग आप देख रहे हो ये रिसाइक्लेबल है। इन नेक्स्ट लॉट वी आर प्लानिंग इट टू मेक बायोडिग्रेडेबल। So USP, as I have told you that my product is non-chlorinated, non-bleach, 90% biodegradable, easy to carry single packaging and easy to dispose. If we talk about market analysis, the sanitary pad market in 2023 was about 19.7 billion US dollars. It is expected to reach 28 billion US dollars by 2028. If we talk about the rapid reasons behind this, as rapid urbanization, growing literacy rate of women is driving this industry in top speed. Currently, India's major players are P&G, Johnson & Johnson and Kotex. We have products like Whisper, Stay Free, Nine, etc. So these products are some of the products which can cause cancer. Okay, business model, we are selling our product in B2B and B2C both. If we talk about B2C, I am selling my product on Amazon, Flipkart and Meesho. If we talk about B2B, I am selling it on B2B websites like IndiaMart and Trade India. I have got customers from IndiaMart and Trade India. So I am also making my own website, which is going to be B2C website. Along with that, I am also launching one sanitary pads subscription-based website where female can get subscription of sanitary pads. Each month, on specific date, we will deliver the number of pads she chose at her doorstep. We are about. So competitive analysis, if we talk about competitive analysis, P&G Hygiene and Healthcare, Kotex are the major player. They hold share of more than 60% in Indian market. Rest 40% is holded by some of the brands like Pari, if you may have heard about Pari brand. Pari and Sati, Be Safe, etc. But the major are non-biodegradable as well. They contain harmful chemical like dioxin. So dioxin is the major chemical which causes infertility in females. And the root cause of ovarian cancer as well as cervical cancer. Growth projection, by the end of 2024-25, we are projecting the sales of 1 CR as now we have done the sales of 45 lakhs. And in next year we are targeting the sales of 5 crores. I would like to say that, sir, I am from Ludhiana and I have been in contact with some of the bigger players in Ludhiana. You may have heard about Vardhaman Group. So in Vardhaman Group we have they were having installed pad machine, vending machine. We have हमने उनको पैड्स दिए हैं, तो वो उधर जितने भी पैड्स हैं वर्तमान ग्रुप में वो हमारी कंपनी के हैं। मॉन्टी कार्लो अगर आपने ब्रांड सुना हो तो वो भी लुधियाना का ब्रांड है। उनकी भी जो ऑफिस में जितने भी वेंडिंग मशीन हैं उसमें भी सैनिटरी पैड्स हमारे ब्रांड के हैं। मेरा अपना कॉलेज है, वहाँ पे मैंने खुद ही वेंडिंग मशीन परचेज करके खुद ही इंस्टॉल करवाई हैं फीमेल वॉशरूम्स में। तो वहाँ पे भी जितने भी सैनिटरी पैड्स हैं वो भी सारे हमारे ब्रांड के हैं। So we will achieve this target by increasing the presence in other cities and increasing our network.
सो हम लुधियाना में स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं सर, हमने मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हायर किए हैं, तो वो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स एज वेल एज वो शॉप्स जो फार्मासिस्ट की शॉप्स हैं, एज वेल एज जो कॉस्मेटिक शॉप्स हैं, वहाँ पे जाके वो कंसल्ट करते हैं उनसे और उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं कि आप सेल करो। इसके अलावा सर हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, हम जो पार्क्स होते हैं, हम सर पार्क्स में भी वीकेंड्स पे पार्क्स वगैरह में नुक्कड़ नाटक वगैरह करवाते हैं अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबल फीमेल केयर विद नारी केयर। सेंसर बायोडिग्रेडेबल और एनवायरमेंट चिल्लाने से तो धंधा नहीं होगा, बरोबर है ना। एनजीओ खोल के रखना ऐसा लग रहा है। तो दूसरी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग पे ही ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। D2C ब्रांड बनना मुश्किल है अगर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो या फिर तो आप दूसरे ब्रांड्स को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बन जाओ, उनके नाम पे बना के दो, या फिर आप आउटसोर्सिंग कर लो इसकी, क्योंकि आप स्केल नहीं कर पाओगे। अगर D2C ब्रांड बनानी है तो आप खुद ही मैन्युफैक्चर करोगे। तो मुझे तो मतलब ये सब सजेशन के लिए लेना, इन्वेस्टमेंट की बात तो अलग है। दूसरी ये आपने 120 रुपए और मतलब ये स्टे फ्री की प्राइस क्या है वैसे? सर स्टे फ्री के प्राइस है सर, वो 6 पैक्स की पैकिंग आती है तो उसका 40 रुपीज प्राइस है, 38 भी है, 40 भी है, वो मतलब सस्ता है अपने से। जी सर। अच्छा, और ये अभी फ्लिपकार्ट में बेचना चालू कर दिया है? जी सर। तो कितना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ रहा है? सर एक्चुअली मैंने एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग में रन की थी, अभी मैं कोई एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर रहा। धंधा भी नहीं आ रहा होगा? नहीं सर, फिर भी मेरे पास रोज के 7-8 ऑर्डर आते हैं उसके। ठीक है। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है एक, आप अगर D2C ब्रांड बनाना चाहते हो तो पहले तो आप फोकस कर लो क्या बताना है। मतलब सिर्फ कॉस्ट के लिए बात करोगे तो इंडिया में तो लोग नहीं खरीदेंगे, वैसा है। दूसरे आपका मार्केट भी क्लियर नहीं है, आप अर्बन मार्केट को टारगेट कर रहे हो, विलेजेस को कर रहे हो, जो न्यू यूजर्स है विलेजेस में, जो मतलब उनको अवेयर करना है और उनको बेचना है, या जो ऑलरेडी अवेयर है, जो स्टैब्लिश प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको बेचना चाहते हो, किसको बेचोगे आप? सर आपके मैं अवेयर तो हैं सर, मैं अर्बन मार्केट में अगर बात करूं अवेयर तो सब हैं, बट सर उनको ये चीजें नहीं ना पता कि जो सैनिटरी पैड्स में चीजें डल रही हैं उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो आप दोनों को कर रहे हो कि नहीं जो सर, ऑलरेडी यूज कर रहे हो उनको भी कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो उनको भी बोल रहे हो कि आप यही वाला खरीदो? मैं सर जो यूज कर रहे हैं उनको आप टारगेट कर रहे हो, उसको साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ कि आप जो चीज यूज कर रहे हो उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, हमारे जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको बताऊं तो सर बायोडी जो हमारी सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस रेंज है सर पर पैड की होती है 32 से लेके 65 सर पर पैड की, हमारी 15 रुपीज है। दूसरा ये सर ने जैसे बताया डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू है आपका, आप खुद जाके लोगों को समझा रहे, मतलब टीम जाके समझा रही, आप खुद स्केल नहीं हो पाएगा। मतलब आपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी स्टॉकिस्ट का जिक्र नहीं किया, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर का जिक्र नहीं किया। सर हमने जैसे हमें ऑनलाइन जैसे ट्रेड इंडिया और इंडिया मार्ट से आए थे तो उन्होंने जैसे सेल स्टार्ट किया, उनको डिस्ट्रीब्यूटर वो आपकी ब्रांड नहीं बनेगी, वो 15 में खरीदेंगे, 1 रुपया भी मिलेगा कहीं और बेच देंगे, या मतलब वो स्टॉकिस्ट नहीं है जो इंडिया मार्ट से आपसे खरीद रहे। आपने किसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि आप हमारे स्टॉकिस्ट है एक्सक्लूसिव, या फिर? नहीं एग्रीमेंट सर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया हुआ, बट सर वो सेल फिर भी मेरे को सही निकाल देते हैं। गुड, अच्छा प्रोडक्ट है और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को आप फोकस कर रहे हो सकता है कुछ थोड़ा और होमवर्क की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।